chapter of insurance or principles of commerce. For the exam perspective, insurance is important. That's why I prepared few slides for you people so that you can go through it. You can find it in your books of principles of commerce also. It may be your chapter 18 or 19 of principles of commerce. So insurance, basically you can see the picture of the insurance as it is showing in the picture, that it is shows our deadline for a clock. It is moving forward and backward, you can say. Because insurance जब हम करवाते हैं अपनी किसी भी, like you can say your life insurance, your commodity insurance, your asset insurance. So again, insurance, it's basically a sort of risk in which not every time your all the commodities can be recovered. इंश्योरेंस डजंट मीन्स कि अब आपने विदाउट एनी हेजिटेशन कोई भी लॉस करना है, ऐसा नहीं है। लाइक अगर आपकी गाड़ी भी इंश्योर्ड है, इट डजंट मीन कि आप जो है वो उसको बार बार हिट करते हुए या उसको बहुत रफली वर्क ऑन करें। It doesn't mean. So it is one of the benefit that the companies is giving you, that if you will feel some sort of loss, so you can recover it again. जो company है वो आपको free में तो ये service provide नहीं करेगी बेटे, because they will charge an amount annually from you, and you are paying on monthly also. So let's proceed towards your slides. This is the definition, and after the class, kindly give me an remembrance note so that I will send you the slides in PDF also to all the students of my class so that you can go through it. Basically, first of all, the definition of insurance, which is mostly we need to cover, is the practice and arrangement by which company and government agencies provide guarantee. Because the first important point which we need to follow, it is a guarantees or the compensation. It means the amount which we are paying to them, we will compensate it from the specified loss, damage, बीमार हो जाते हैं, किसी कोई डेथ हो जाती है, तो उससे जो भी आपका लॉस होगा तो उसकी एक हमें गारंटी सी मिल जाती है कि हमारे पास अगर कोई नुकसान होगा, सो लाइक वी हैव अ बैकअप ऑफ इट, कि कुछ ना कुछ उसमें से फुलफिल हो जाएगा। अगेन जब हम डेथ की बात करते हैं तो डेथ को हम रिकवर नहीं कर सकते, बट सम पीपल वांट कि आफ्टर देयर डेथ देयर फैमिली विल नॉट फील, यू कैन से, हैंड टू माउथ। तो जब वो अपनी फैमिली को बिल्कुल हैंड टू माउथ नहीं देखना चाहते, तो दैट्स व्हाई दे हैव देयर इंश्योरेंस in their life, that after their life their family will not suffer the loss. So the amount of premium will be paid to the party, which is your insurer. Then insurance is a contract. It basically it's a document between the two parties, the insurance party and you. So it is represented a policy sort of. It is it depend देखिए policy का word use किया है. So policies always depend upon the number of years. ठीक है, तो जब ये कुछ वोकैबुलरी है ये अपने पास याद कर लीजिएगा, ताकि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन आसान हो जाए कि इंश्योरेंस खुद क्या है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ पॉलिसी इन विच द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, जिसमें कोई भी बंदा अपना इंश्योरेंस क्यों करवाता है, कोई भी इंडिविजुअल, ताकि उसको फाइनेंशियली प्रोटेक्शन फील हो और वो सेफ फील कर सके। एंड देन रीइंबर्समेंट अगेंस्ट द लॉस, और जो भी उसका लॉस हो, सपोज उसका 50,000 का नुकसान हुआ है, तो उसकी वो अमाउंट उसको वापस मिल जाए, रीइंबर्स्ड हो जाए। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है अमाउंट का दोबारा मिल जाना। फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी, द कंपनी पूल्स क्लाइंट रिस्क टू मेक पेमेंट्स मोर अफोर्डेबल फॉर द इंश्योर्ड। तो कंपनी क्या करती है, वो आपके इस रिस्क को रिड्यूस करती है बाय पेइंग यू और गिविंग यू द पेमेंट। Now, the another important is a profitability or the threat of damage, injury, liability, loss or any other negative occurrence. ऐसा कुछ भी किसी भी चीज़ की ऐसी probability हो जाना, मैंने शायद इसको पहले profitability पढ़ लिया था, sorry. Probability means occurrence of losses. किसी भी चीज़ का loss occur हो जाना, like it can be your damage, it can be your any injury, किसी भी किस्म का नुकसान होना जो कि कॉज करे आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल वनरेबिलिटीज को, एंड दैट मे बी अवॉइडिंग थ्रू योर प्रिवेंशन एक्शन, जिससे आपको ही प्रिवेंट करें। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज नुकसान होने वाली है उससे पहले आप एहतियात करें, ठीक है।
अच्छा, पार्ट्स ऑफ रिस्क, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए। हम वी हैव गॉन थ्रू द बिजनेस रिस्क, वी मस्ट नो द अनइंश्योरेबल रिस्क एंड वी मस्ट नो द इंश्योरेबल रिस्क। ये आपके पास पार्ट्स ऑफ रिस्क है, इंश्योरेबल, अनइंश्योरेबल एंड द बिजनेस रिस्क। इंश्योरेबल, अनइंश्योरेबल एंड बिजनेस रिस्क को गो थ्रू करने से पहले मैं आप लोग को बताऊं कि वो बोर्ड परस्पेक्टिव से ये आपके रिपीटेडली टॉपिक हैं जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस and types of insurance. Business insurance is the possibility a company will have lower than the anticipated profit, ठीक है, lower than the profit or experience a loss rather than taking a profit। वो लॉस सफरिंग जब ज्यादा हो जाए उसकी और प्रॉफिट बिल्कुल भी ना हो रहा हो तो डेफिनेटली फर्म जो है वो लॉस सफर करेगी, नुकसान में आएगी, रिस्क में आएगी। यानी एक बिजनेस है और उसको मुस्तकिल लॉस पे लॉस हुए जा रहा है, इसका मतलब उसको इसका बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन पे है और प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा। अब ये जो पिक्चर शो कर रही है इट मीन्स कि वो जो बिजनेस के हेड्स हैं वो रिस्क सफर करने पे आ गए हैं। Then business risk is influenced by numerous factors, different factors हैं जिससे वो influence हो रहा है। जैसे कि जिसमें आपकी sales हैं, पर यूनिट प्राइस है, कॉस्ट है, कंपटीशन मार्केट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज हो गई है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, हो सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, टैक्सेशन के, ये तमाम चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके बिजनेस की सेल्स एंड परचेज को। Then we have business risk is divided into subdivided into different ways: marketing risk, credit risk, equipment risk, inventory, government, fire theft, and accidental. Yes, marketing risk. Marketing risk is the possibility for investor to experience loss. ऐसा क्या होता है कि जब आपके मार्केट में बिजनेसमैन लॉस सफर करने लग जाता है तो वो अपना ढूंढता है कि मुझे कोई इंश्योर करे, मुझे कोई प्रोटेक्शन दे। सो इंश्योरेंस का एक दूसरे मीनिंग किस में आता है, प्रोटेक्शन के सेंस में। दिस बिजनेसमैन विल सर्चिंग अ प्रोटेक्शन फॉर इट्स बिजनेस ड्यू टू द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट in which he is involved। मार्केट रिस्क को हम सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जामिनेशन in the exam you can find the difference between the business risk and marketing risk, ठीक है। यानी मार्केट रिस्क और बिजनेस रिस्क का डिफरेंस भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो उसकी जो इम्पोर्टेंट शुरू की 4 to 5 लाइंस है वो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें हमारे पास मार्केट लॉस सफ़र कर रही होती है, अपने आप को लॉस से डिफेंड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास इनसिक्योरिटीज जनरेट हो जाती है जिसको हम सिस्टमैटिकली रिस्क कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन, जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बिकॉज सोर्स ऑफ मार्केटिंग, जैसे हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा रिसेशन होता है। रिसेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, मार्केट चेंजेस आ रहे हैं, कोई नेशनल डिजास्टर्स आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास करंटली एक कोविड is a current, you can say overall economic is disturbed by a covid situation, so your market is facing so much risk। जो भी आपके शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, दे आर डूइंग देयर बिजनेस एट अ रिस्क। They are producing the commodities, but they are even not sure whether they are getting a good profit from the production or not. Okay, then we have some credit risk. Credit risk, I will go through few lines of the credit risk. The credit risk refer to the risk that borrower may not repay loan, that the lender may lose the principal, so it is not the repayment of the loans। हम आपको जो loans है वो दोबारा repay नहीं होगा। lender lose कर सकता है अपना principal of the loan जो कि उसकी interest से associated होगा। credit risk का मतलब क्या होता है कि आप किसी को credit दे रहे हैं and in return you are not getting it back, तो आपको एक risk generate हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे 20,000 रुपीज ले लूं और फिर मैं वो आपको रिटर्न बैक ना करूं, सो यू आर फेसिंग अ रिस्क, क्योंकि आपने अपना एक एसेट मुझे लोन पे दिया होता है, क्रेडिट पे दिया होता है, और मैं उसको अगर रिटर्न ना करूं तो डेफिनेटली यू आर फीलिंग अ रिस्क के पता नहीं ये वापस भी होगा या रिटर्न होगा भी या नहीं होगा।
Then we have equipment risk, a large part of the capital is invested on fixed assets. ठीक है, हमारे पास बहुत सारा जो है एसेट, वो डेफिनेटली हमने अपने पैसे ज़्यादातर अपने इक्विपमेंट में या फिक्स अमाउंट में रखे हुए होते हैं, और उसकी फास्ट ग्रोइंग, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी की चेंजिंग्स आ रही है, फॉर एग्जांपल आपके पास घर में मशीनरीज हैं, कोई इक्विपमेंट्स हैं, इसी तरह जो फर्म्स हैं उनके पास कुछ ओल्ड कंप्यूटर्स हैं, और अब एकदम से कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी अगर चेंज कर दी है, और आपको इंटरनेशनल मार्केट से कंपटीशन करने के लिए अपने टूल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, सो डेफिनेटली योर इक्विपमेंट्स विल बिकम एट रिस्क देन. Then we have to follow the inventory risk. Inventory basically कहते हैं आपके raw materials को, products को, your finished goods are your inventory, जिसको आपने properly in and out करना है through the process of FIFO and LIFO. ये points हम पहले discuss कर चुके हैं, सिर्फ आपको सिर्फ headings पता होनी चाहिए. मैं main आती हूँ fire, theft and accidental पे, ठीक है. These types of risk are uncontrollable. जैसे fire है is uncontrollable, theft we cannot control the theft by ourselves. An accident, definitely it can be occur at any time. No one can have the surety for this. So we have to meet these circumstances, तो हमें बहुत ज़्यादा risk होता है. And floods and earthquake and storm, these are very risky situations for a businessman. The factory may catch fire owing to a short circuit, or otherwise goods may be stolen. These are all the accidental situations which we can't control. So this is the risk oriented situation. Uninsurable risk, a hazard or the condition that has either a high or like livelihood of loss, or in which the insurance would be considered against the law. ठीक है, ये इसकी मेन हेडिंग है. Sorry. Okay. So insurance companies limit their losses by not taking on certain risk. हमारे पास insurance companies क्या होती हैं, वो अपने losses को limit up करती हैं, बहुत ज़्यादा अपने पास risk को generate होने से महफूज करने के लिए वो अपने पास वो स्ट्रैटेजीज प्लान करती हैं जिससे उनको ज़्यादा ज़्यादा जो है रिस्क या इंश्योरेंस जनरेट ना हो. जैसे जितने भी टाइप्स ऑफ रिस्क मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, हम उन रिस्क की प्रोटेक्टिव मेजर्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स को प्लान करते हैं, ताकि हमारे पास जितने भी जो रिस्क आ रहे हैं हम उनको बिफोर द रिस्क उसको प्रिवेंशन की तरफ लेके चले जाएं. ठीक है. देन हाई रिस्क पूल्स कैन बी रिड्यूस्ड. ठीक है. ओके. Then we have some elements of insurable risk. Wait, insurable risk. So for this, आज की क्लास में हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा insurable risk और उसके कुछ फैक्टर्स हैं. इंश्योरेबल रिस्क इवेंचुअली फॉर लॉसेस और डैमेज. ठीक है. जो इंश्योरेबल रिस्क है वो किस लिए होता है, ऐसा रिस्क जो कि जिसमें लॉस या डैमेज आपका, आप उसको रिकवर कर सकें, इंश्योरेबल कर सकें. मीन्स आपके पास फॉर्चुनिटीज होती हैं सिमिलर टू द लार्ज नंबर ऑफ अननोन एक्सपोजर्स होते हैं. आपको किसी को प्रीमियम पे करना होता है, प्रॉफिट पे करना होता है, वो तमाम चीज़ें आपके पोटेंशियल लॉसेस पे बेस कर रही होती हैं. ठीक है. जो कि आपने लिखा है सी ऑल्सो अनइंश्योरेबल रिस्क. इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या है, लॉस एंड डैमेज दैट इज डिफाइनेबल, ऐसा लॉस या डैमेज जो कि आपका डिफाइनेबल होगा, जो कि फॉर्चुनिस्ट होगा, जो कि सिमिलर टू लार्ज नंबर ऑफ अननोन एक्सपोजर्स. मींस अननोन एक्सपोजर्स मींस which is you are not planned but you can insure it, you can recover it, but uninsurable cannot recover it. Okay. Elements of insurable risk. Following are the elements for insurable risk. Loss may be due to chance. किसकी वजह से होता है? Because of the chance. Then second point, the loss must be defined and measurable. You have to just go through the first line because we have already learned it from our notes. So we should not go in the deep slides. The loss may be predictable. हम अपने लॉस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं. हमारा लॉस मेजरेबल होता है, एक हद तक होता है, उससे ज्यादा नहीं एक्सीड करेगा.
लॉस कैन बी कैस्ट्रोफिक। अच्छा, कैस्ट्रोफिक का मतलब क्या होता है? मींस जो आपके पर्सनल्स होते हैं, पर्सनल बिलोंगिंग से रिलेटेड होते हैं। द रेफरेंस हेयर इज द नेशनल और एरिया डिजास्टर सच एज फ्लड्स, वार, अर्थक्वेक। हो सकता है वो आपके एरिया में है और दूसरे के एरिया में नहीं है, आपकी कंट्री में है दूसरे की कंट्री में नहीं है। सो इट इज योर पर्सनल्स, मींस योर एरिया, योर कंट्री और योर पर्सनल एसेट। दीज इवेंट्स विल ऑफन हैव कवरेज अमाउंट ऑफ लिमिटेशन द प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी। ठीक है, एक खास एरिया होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है और वहां पे कोई लॉस आपके पास अगर होता है, तो डेफिनेटली जो आपकी कंपनी का लॉस है वो एक हद तक रिकवर होगा और उससे ज्यादा नहीं होगा। तो उसकी भी एक लिमिटेशन, डिजाइन और एरिया आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ होगा कि अगर आपकी कंपनी को आग लग गई तो कितना एरिया या किस लिमिट तक हम आपको कवरेज देंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी को आग लगी और पूरी आग कंपनी आपकी जल जाती है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से कहेंगे कि हमें पूरी कंपनी हमारी इंश्योर थी तो आप हमें दें। तो उसकी भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पॉलिसीज की। द लॉस एक्सपोजर मस्ट बी अ लार्ज। ठीक है, हमारे पास इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है जो कि समटाइम प्रोडक्टेबल अनप्रोडक्टेबल, क्योंकि हम इंश्योरेबल पढ़ रहे हैं तो ये प्रोडक्टेबल होगा। देन लॉस एक्सपोजर्स में बी रेंडमली सिलेक्टेड। अब ये रेंडमली सिलेक्टेड होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ है और कितना लॉस बेयर हो रहा है। ठीक है, okay, fine. Then this is enough for this. These are your types of insurance you must know: insurance, home insurance, travel insurance, car insurance, and then life insurance. This is from the types of insurance. मैं इसकी आप लोग के साथ slides आगे share कर लेती हूँ। Small definitions यहाँ पे मौजूद हैं. Life insurance is the protection against financial loss. Okay, and then we have already done it, so I would like to go through this. Then different types of life insurance: term life insurance, ordinary life insurance, we have gone through it before also. Then limited payment life insurance, in which we have done कि हमारे पास एक specific limited period होता है जिसपे premium भी generate हो रहा होता है. Then we have endowment life insurance. This is everything is available in your notes. Personal accidents insurance, these are all the types of the insurance. Then types of personal accidents is your business travel, your personal accidents insurance, household members. Okay, so this is all for today. I'm not going in deep. That's enough for today. Yes, this is enough for today. Thank you for so much. Because I'm not going in so much deep, we have already done the insurance from our notes in the last few lectures. So this is all for today. Thank you so much.